اپنے روز کی طرح ٹہل رہے تھے۔ مور ہمیشہ سے ذرا فخر والا تھا، گردن اونچی، چال میں ٹھاٹھ اور پنکھوں میں جیسے کوئی پھسانہ چھپا ہو۔ مگر مورنی کا مزاج مختلف تھا، چپ، گہرائی لیے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں اکثر کوئی ادھوری سی امید ٹھہری رہتی۔ اس روز جب وہ پگڈنڈی کے موڑ پر پہنچے تو ایک بے حد کمزور مگر صاف سنائی دینے والی آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا، ایک نوجات بچی کے رونے کی آواز۔ مورنی کی چال تھم گئی، اس کی گردن جھکی اور کان آواز کی جانب لگے۔ مور نے فوراً کہا، کہیں کوئی شکاری نہ ہو، لوٹ چلو۔ مگر مورنی نہیں مانی۔ یہ آواز شکاری کی نہیں، پیاری نادان کی ہے۔ انہوں نے دھیرے دھیرے جھاڑیوں کے پاس جانا شروع کیا۔ جیسے ہی پاس پہنچے تو آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا جو کلیجہ چیر دینے والا تھا۔ ایک ننگی، مٹی میں لپٹی ہوئی ننھی سی بچی زمین پر پڑی تھی۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا، آواز بھلے ہلکی تھی مگر اس میں ایک ایسی تڑپ تھی جو سیدھا دل کو چیرتی تھی۔ مور پیچھے ہٹنے لگا مگر مورنی کی نظر ٹھہر گئی، اور تبھی ان کی نظروں کے سامنے سے دو سائے بھاگتے ہوئے گزرے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، کپڑے بے ترتیب، چہرے الجھن میں لپٹے ہوئے۔ ایک لمحے کو مورنی نے بس ایک بات سمجھی، یہ بچی انہی کی ہے اور یہ لوگ اسے یوں ہی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اپنے کسی چھپے ہوئے رشتے کی گواہی مٹانے کے لیے۔ مورنی نے دھیمے سے آگے بڑھ کر اس بچی کو اپنی چونچ سے چھوا، پھر گردن جھکا کر اس کی ہلکی سانسیں سنی۔ زندہ تھی مگر بہت نازک۔ مور پیچھے سے بولا، کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ انسانوں کی چیزوں میں کودنا صحیح نہیں۔ مگر مورنی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ مورنی کو یاد آیا کہ وہ خود کبھی ماں نہیں بن پائی تھی۔ وہ جھکی اور اپنے پنکھوں کے نیچے اس بچی کو بہت حفاظت سے سمیٹ لیا۔ اس وقت مور کھڑا دیکھتا رہا مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ شام ہو چلی تھی، جنگل کے اوپر ہلکی نیلی دھند پسر رہی تھی اور دور سے کسی الو کی آواز آ رہی تھی۔ مورنی اس بچی کو لیے چپ چاپ ایک کونے میں بنے اپنے پرانے بسیرے کی طرف لوٹنے لگی۔ اس کے دل میں اب کوئی خالی پن نہیں تھا، بس ایک رشتہ تھا، ماں اور بچی کا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس بچی کا سچ کیا ہے۔ وہ رشتہ جو اسے بنا رہا تھا ماں، بہت بڑا طوفان لانے والا ہے۔ رات اب پوری طرح جنگل پر چھا چکی تھی۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک، پتوں کی سرسراہٹ اور کبھی کبھی دور سے کسی جانور کی آواز، سب مل کر ایسا ماحول بنا رہے تھے جیسے کوئی انکہا ڈر جنگل کی فضا میں تیر رہا ہو۔ مگر مورنی کے پنکھوں کے نیچے ایک ننھی سی جان چین سے سوئی پڑی تھی۔ اس نے مور کی طرف دیکھا جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، ابھی تک کچھ حیرانی اور نہ سمجھنے کی حالت میں۔ دیکھو، یہ بچی اب میری ہے، مورنی نے دھیمے لیکن بے حد یقین سے کہا۔ اس کی آواز میں ایسا لہجہ تھا جو ایک ماں کا ہوتا ہے۔ مور نے کچھ دیر تک صرف اسے دیکھا، پھر بولا، لیکن انسان کی اولاد کو پالنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی ہمارے جیسی نہیں ہوتی۔ انہیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، دودھ، کپڑا، نرمی، اور ہماری دنیا صرف پتوں اور کیڑوں سے بنی ہے۔ مورنی نے اس کی بات پوری سنی مگر اس کی نظروں میں اس وقت صرف ایک منظر تھا، وہ پیاری بچی جو اب اس کے اندر ماں کی پہچان جگا چکی تھی۔ مورنی اسے لے کر اس پرانے شہتوت کے پیڑ کے نیچے پہنچی جہاں دونوں اکثر رات گزارا کرتے تھے۔ وہاں ایک گھنا جھرمٹ تھا جو ٹھنڈی ہواؤں سے کچھ حد تک محفوظ رہتا تھا۔ مور نے پتوں کو اپنی چونچ سے اکٹھا کیا، سوکھے تنکوں کی ایک پرت بچھائی اور اس پر مورنی نے بچی کو بہت نرمی سے لٹایا۔ بچی اب بھی بے حد کمزور تھی، اس کا جسم ٹھنڈا اور سانسیں اتھلی۔ مورنی نے اس کے آس پاس اپنے پنکھ پھیلا کر ایک گھیرا بنایا، ماں کی حفاظت کا پہلا لمحہ۔ مگر سوال تھا، اب کیا؟ اس پیاری بچی کو کھانا چاہیے تھا۔ انسانی بچے دودھ کے بغیر زندہ نہیں رہتے، اور یہ تو جنگل تھا اور وہ بھی ایک مورنی تھی۔ لیکن کچھ ہی دور اس جنگل کے پورب حصے میں ایک جھنڈ رہتا تھا، بندروں کا جھنڈ جو زیادہ تر اونچے پیڑوں پر دن رات بتاتے اور رات کو ایک ساتھ سوتے۔ اس جھنڈ میں ایک بوڑھی مادہ بندر تھی جس کی حال ہی میں اولاد مری تھی۔ دودھ اب بھی اس کے جسم میں تھا مگر بچہ نہیں۔ رات کے وقت وہ بوڑھی مادہ اکیلی تھی۔ جیسے ہی صبح کی پہلی ہلکی روشنی پھیلی، وہ گھومتی گھومتی شہتوت کے پیڑ کے پاس آ نکلی جہاں مور اور مورنی رہتے تھے۔
बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वो मादा वहीं रुक गई। उसकी आंखों में अजनबीपन तो था, लेकिन कोई अजीब सी कशिश भी थी। मोरनी ने बच्ची को सीने से चिपकाया और देखा, मादा बंदर धीरे धीरे करीब आ रही थी, झुकी और बच्ची को देखने लगी। एक लम्हा ऐसा था जैसे दो माएं एक दूसरे को समझ गईं, एक जिसकी औलाद छिन गई और दूसरी जो कभी माँ बन नहीं पाई। मोरनी ने बच्ची को धीरे से आगे सरकाया। मादा बंदर ने एक झिझक भरी ममता के साथ बच्ची को गोद में लिया और वही हुआ जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, बच्ची को दूध मिल गया। मोर दूर से सब देखता रहा और फिर धीरे से पेड़ की एक टहनी पर जाकर बैठ गया। अब उसे समझ में आ रहा था कि ये रिश्ता मुमकिन था, मुश्किल सही मगर मुमकिन। अगले दिन जब सूरज की किरणें पेड़ों की दरारों से छनकर जमीन पर पड़ने लगीं, तो बच्ची की सांसें अब जरा गहरी हो गई थीं। गालों पर हल्की सी रंगत लौट आई थी। मोरनी ने उसका नाम नन्ही रख दिया, क्योंकि वो जानती थी ये बच्ची अब उसकी दुनिया की सबसे नाजुक, सबसे अजीज चीज है। मगर इस सुकून के नीचे एक बहुत गहरा खतरा भी था। इंसान, वो जो दो लोग भागे थे, वो कहीं वापस ना आ जाएं, या फिर कोई और इंसान जंगल में आ निकले और इस बच्ची की कहानी उजागर हो जाए। अब मोरनी को सिर्फ माँ नहीं बनना था, उसे चौकीदार भी बनना था। माँ जो न सिर्फ प्यार करती है बल्कि लड़ती भी है। मगर उस वक्त मोरनी को नहीं मालूम था कि जिस वक्त उसने बच्ची को उठाया था, कोई उसे देख रहा था। वो कोई जानवर नहीं था, वो इंसान था, एक पुराना लकड़हारा जो जंगल के कोने में पेड़ काटने आता था। वो दूर से पूरी बात देख चुका था और अब उसके जहन में एक अजीब सी कहानी बन चुकी थी। एक मोरनी जो इंसानी बच्ची को उठा कर ले गई है, शायद किसी टोने या जादू की वजह से। अब उस लकड़हारे के पास कहने को एक अफसाना था कि मोरनी एक बच्ची को उठा लाई है। दोस्तों, इस लकड़हारे को आप अपने जहन में रखना, ये कहानी में बड़ा ही अहम किरदार साबित होगा। अगली सुबह जंगल की कुछ अजीब थी। हवा में एक तरह की बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखा डर दरख्तों के पत्तों में सरसराता फिर रहा हो। मोर एक पेड़ की ऊंचाई पर बैठा सब कुछ नजरों से देख रहा था। उसके नजदीक नीचे जमीन पर मोरनी ने बच्ची को अपनी नरम पंखों की ओट में छुपा रखा था, जैसे कोई माँ आंचल फैलाकर अपनी औलाद की खतरों से हिफाजत कर रही हो। फिर अचानक दोपहर के वक्त वो बंदरियां जो बच्ची को दूध पिलाती थी, चुपचाप चली गई, बिना किसी को कुछ कहे। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि ये दुनिया अब उसकी नहीं रही और उस बच्ची की हिफाजत की जिम्मेदारी अब किसी और के कंधों पर है। अब मोरनी अकेली रह गई थी, अकेली लेकिन हिम्मत से भरी हुई। अचानक एक शाम मोरनी ने दूर किसी चीज की आहट सुनी। वो आवाज कुछ जानी पहचानी थी। वो इंसानी कदमों की आवाज थी, वो लहजा जिसमें जंगल खामोश हो जाया करता है। बच्ची की सांसें तेज हो गईं, शायद उसे किसी अनदेखी याद ने छू लिया था। मोरनी ने झटके से अपने पंख और फैलाए। उसे एहसास था कि खतरा नजदीक है। जंगल के एक कोने से लकड़ियों की आवाज आई, फिर एक आदमी की सूरत, अधपके बाल, कंधे पर कुल्हाड़ी और आंखों में अजनबी सी थकान। वो लकड़हारा था। लकड़हारा कौन था? उसका नाम तो कहानी में बाद में आएगा, मगर चेहरा थका हुआ था, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिखा दिया हो। मोरनी ने पेड़ की आड़ में छुपते हुए उस आदमी को देखा, लेकिन वो आदमी बच्ची की तरफ नहीं आया। वो तो दरख्तों की टहनियां काटकर बस अपना बोझ बांधने में लगा हुआ था। उसने बच्ची की आवाज तक नहीं सुनी, मगर दूर कोई और था, दो साए। वो दो लोग जो उस दिन जंगल से भागे थे, वही लड़का और लड़की जो अपने गुनाह को मिटाने के लिए नन्ही जान को जंगल छोड़ आए थे। वो बच्ची और मोरनी की तलाश में दोबारा जंगल आए थे, लेकिन सवाल ये था कि उन्हें कैसे पता चला बच्ची मोरनी के पास है और जिंदा है। इसका भी खुलासा आगे होगा। खैर, उन दोनों को उस दिन जंगल में मोरनी और बच्ची नहीं मिले। मोरनी अब बच्ची को अपने पंखों में लपेटे धीरे धीरे उसे लेकर झाड़ियों की तरफ खिसकने लगी। उसने वो जगह छोड़ दी जहां वो कई रोज से ठहरी थी। अब हर पल उसकी कोशिश थी बच्ची को इंसानी नजरों से बचाकर किसी महफूज कोने तक पहुंचा दे। मगर जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा था। कहीं से एक शिकारी का जाल लटका हुआ था, कहीं जमीन पर इंसानी बूटों के निशान। मोरनी को समझ आ गया था, अब सिर्फ पंखों से नहीं, दिमाग से भी उड़ान भरनी होगी।
एक दिन मोरनी जंगल में बच्ची के साथ थी, तब अचानक एक आवाज आई, वो यहीं कहीं होनी चाहिए। मोरनी की रूह कांप गई। वो लड़का और लड़की फिर जंगल में थे। उनके चेहरे पर हवास बाखता सी बेचैनी थी। लड़की बार बार कह रही थी, अगर कोई देख लेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमें वो बच्ची चाहिए अभी। अब तक जो हुआ था वो एक इत्तेफाक जैसा था, लेकिन अब जंगल की खामोशी टूट चुकी थी। मोरनी की आंखों में एक आग थी, एक तूफान था जो किसी भी कीमत पर उस बच्ची की हिफाजत में रुकावट डालने नहीं देगा। अब उसे खुद ही इंसान से लड़ने का वक्त आ चुका था। कोई इंसान मदद को नहीं आएगा, न कोई हाथ बढ़ेगा, सिर्फ वो और बच्ची। और उस लड़ाई में जीत हर हाल में उसकी होगी। मोरनी ने डरते हुए बच्ची को अपनी पंखों में और कस लिया। उसने अपनी जान की सारी ताकत संजोते हुए उसे एक खड़ी घास के झुरमुट में छुपा दिया ताकि कोई देख न सके। लेकिन उसके कानों में अब भी उस लड़के और लड़की की आवाजें गूंज रही थीं। वे दोनों करीब आ रहे थे, ज्यादा शोर करते हुए, ताकि किसी को शक न हो। ये खतरनाक था और मोरनी को इसका पूरा अंदाजा था। मोरनी ने धीरे से पंख हिलाए और बच्ची को ध्यान से पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। उसके पैरों के नीचे बर्फ जैसी खामोशी थी। वो पत्तियां जो उसे डुबोने की कोशिश करती, अब सिर्फ उसकी सांसों की आवाज में घुल रही थीं। तभी वो दोनों, लड़का और लड़की, जमीन पर पांव रखते हुए मोरनी के नजदीक पहुंचे। उनका चेहरा शिकारी की तरह था, एक तेज छलने वाली नजर जो किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए तैयार थी। मोरनी को समझ आ गया कि अब छुपना मुमकिन नहीं था। उसे हर हाल में अपनी हमले वाली कला दिखानी थी ताकि बच्ची की जिंदगी को कोई खतरा ना हो। मोरनी ने अचानक अपने पंख पूरी तरह से फैला दिए, जैसे किसी शिकारी पक्षी की तरह जो दुश्मन के सामने किसी भी वक्त हमला करने को तैयार हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसके दिल में वह उथल पुथल चल रही थी जो किसी शेर की जैसी होती है। उसने रुख बदल लिया और सीधा उन दोनों इंसानों की तरफ दौड़ पड़ी। लड़का और लड़की जो अब बच्ची के पास पहुंचने वाले थे, मोरनी को देखकर हड़बड़ी में आ गए। लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, उसे छोड़ो। लेकिन मोरनी ने डरने की बजाय और तेजी से दौड़ते हुए उन दोनों की तरफ एक डरावना मोर्चा ले लिया। लड़का जो घबराया हुआ था, उसने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी से मोरनी को डराने की कोशिश की, मगर मोरनी ने पल भर में अपने पैरों से हवा में कूदकर उस लकड़ी को झपटा और फेंक दिया। लड़की चीखी, हमारा बच्चा! लेकिन मोरनी ने अपनी चोंच से उनकी आवाज दबा दी। मोरनी अब पूरी तरह से उन दोनों के सामने खड़ी थी। उस पंखों के बने जाल की ताकत में कुछ था, किसी इंसान की वो आवाज जो अपनी औलाद की हिफाजत के लिए किसी भी तरह की जंग लड़ने के लिए तैयार हो। ये सिर्फ एक लड़ाई का शुरुआत थी, क्योंकि मोरनी को अब यह एहसास हो गया था कि इंसान से जितना दूर रहना होगा उतना ही बच्ची की हिफाजत करना आसान हो जाएगा। लेकिन उसे ये भी समझ आ गया था कि अगर वो इस जिद्दोजहद को अब जीतने में कामयाब हो जाती है तो न सिर्फ खुद को और बच्ची को महफूज कर पाएगी, बल्कि ये जंगल उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले सकता है। मोरनी ने अपनी पूरी ताकत एक बार फिर से जुटा ली। उसका दिल, जो पहले सिर्फ एक ममता से भरपूर था, अब उस शिकार की तरह डूबा हुआ था जो अपनी जान की हिफाजत के लिए किसी भी हाल में लड़ाई करेगा। उस बच्ची को बचाने के लिए मोरनी ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने का फैसला कर लिया था। जैसे ही लड़का और लड़की पास आए, मोरनी ने अपनी चोंच को खोला और एक कड़ा शोर मचाया। इस शोर ने लड़के और लड़की को सन्न कर दिया। लड़का हड़बड़ाते हुए लकड़ी उठाकर मोरनी की तरफ बढ़ा, लेकिन मोरनी की निगाहों में जो आग थी वो उसके कदमों को ठंडा कर गई। मोरनी ने झपटते हुए लड़के की लकड़ी को अपने पंखों से धक्का दिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। लड़की चिल्लाई, कहाँ जा रहे हो, उसे मारो! लेकिन मोरनी की तेज आंखें जो चांदनी की तरह चमक रही थीं, लड़के के दिल में एक अजीब सा डर भर चुकी थीं। मोरनी ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी और अपने पंखों के साथ लड़के और लड़की के सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो गई। लड़का और लड़की डरे हुए थे, लेकिन मोरनी ने एक और कदम बढ़ाया, इस बार अपनी चोंच से लड़की को धक्का देते हुए। लड़की गिरते हुए चिल्लाई, ये क्या कर रही हो तुम? मोरनी ने इसे एक झटका दिया और बच्ची को अपने पंखों में लपेटते हुए हवा में उड़ गई। लेकिन मोरनी की आंखों में ममता की एक नजाकत थी
وہ بچی کو لے کر اڑ گئی تھی۔ اس کے پنکھ